السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے اردو میں NCERT، اور ہم سائنس صرف پڑھ رہے تھے، جو آج ہم پہنچے ہیں 7ویں کلاس کے سبق نمبر 14۔ کیا بچوں؟ سبق نمبر 14۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 14 میں برقی رو اور اس کے اثرات، الیکٹرک کرنٹ اینڈ اٹس ایفیکٹس۔ چھٹی کلاس کے بارے میں باب میں آپ نے ہاؤ اسٹڈی پڑھا ہے۔ کھیل میں خوب دلچسپی لی ہوگی۔ اگر اس وقت موقع نہ ملا ہو تو اب بھی ضرور کوشش کریں۔ پہلے اور بوجھوں نے ایک برقی سڑک کو جوڑ کر یہ کھیل ترتیب دیا تھا۔ جیسا کہ چھٹی کلاس میں تجویز کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر اس کھیل کو انجام دیا تھا اور بڑا لطف اٹھایا تھا۔ انہوں نے اس سے اتنا لطف لیا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک بھائی کو بھی یہ کھیل بتانے کا فیصلہ کر لیا، جو کہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اس طرح پہلی نے ایک صاف اور واضح ڈرائنگ بنائی جس میں بجلی کے مختلف ساز و سامان کمپوننٹ کو باہمی مربوط کیا گیا، جیسے یہ دیکھ رہے ہیں وہی بچوں شکل۔ آپ کا ہاتھ کتنا ہموار ہے یہ جانچنے کے لیے سیٹ اپ کیا۔ آپ اس سرکٹ کو آسانی سے کاغذ پر بنا سکتے ہیں۔ بوجھو کو اس بات نے حیرت میں ڈال دیا کہ کیا ان برقی کل پرزوں الیکٹرک کمپوننٹ کو دکھانے کا کوئی اور آسان طریقہ بھی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں برقی کل پرزوں کی علامتیں۔ سمبولز آف الیکٹرک کمپوننٹ۔ برقی کا پرزوں کا علامت سمبولز کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے۔ سمبول یاد کر لیجیے۔ کچھ پرزوں اور ان کی علامتیں دکھائی گئی ہے۔ مختلف کتابیں میں آپ کو ان کل پرزوں کے لیے مختلف علامتیں ملے گی، حالانکہ اس کتاب میں ہمیں جو علامتیں استعمال کی ہے وہ جدول 1 میں ہم نے دکھا دی ہے۔ ان علامتوں کو غور سے دیکھیے۔ برقی سیل کے لیے جو علامت اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائن ذرا لمبی اور دوسرا ذرا چھوٹی مگر موٹی اور متوازی ہے۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ایک برقی سیل میں ایک مثبت ٹرمینل ہوتا ہے اور ایک منفی ٹرمینل ہوتا ہے۔ برقی سیل کی علامت میں لمبی لائن مثبت ٹرمینل کا اظہار ہے اور موٹی مگر چھوٹی لائن منفی ٹرمینل کا اظہار ہے۔ اگر سوئچ کھلا ہوا یعنی آن حالت میں ہے یا پھر بند ہے یعنی آف میں ہے تو ان دونوں حالتوں کے لیے الگ الگ علامتیں دی گئی ہے۔ جو تار سرکٹ مختلف کل پرزوں کو مربوط کر رہے ہیں ان کو مخطوط کے ذریعے پیش کیا گیا۔ جدول 1 میں بیٹری اور اس کی علامت کو بھی دکھایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیٹری کیا ہوتی ہے۔ بیٹری کی علامت کو دیکھیے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیٹری کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ہمیں اپنی سرگرمیوں کے لیے ایک سے زیادہ سیلوں ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم 2 یا زیادہ سیلوں کو جوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ شکل 2 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ بھی غور کیجیے کہ ایک سیل کا مثبت ٹرمینل متصل سیل کے منفی ٹرمینل سے مربوط ہے۔ اس طرح 2 یا 2 سے زیادہ سیلوں کے اتحاد کو بیٹری کہا جاتا ہے۔ بہت سے آلات مثلاً ٹارچ، ٹرانزسٹر، کھولوں اور ٹی وی ریموٹ کنٹرولر میں بیٹری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ ان میں سے کیا ہوتا ہے، جیسے دیکھ سکتے ہیں بچوں، آن ہے آف کیسے، ان میں سے کچھ کل پرزوں کے اندر بجلی کے سیل ہمیشہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہیں رکھے جاتے۔ کبھی کبھی سیل ایک دوسرے کے دائیں بائیں رکھے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں سیلوں کے ٹرمینل کس طرح جوڑے جاتے ہیں؟ ان میں سے کسی آلے یا مشین کے اندر بیٹری کے خانے کے غور سے دیکھیے۔ ان میں سے عام طور پر ایک موٹا تار یا دھاتی پٹی ایک سیل کے مثبت ٹرمینل کو اس کے آگے کے دوسرے سیل کے منفی ٹرمینل سے جوڑتی ہے۔ سیلوں کو صحیح ترتیب سے بیٹری کے خانے میں رکھنے کے واسطے آپ کی مدد کرنے کے لیے عام طور پر پلس اور مائنس کی علامات جوڑ گھٹاؤ کے مائنس چھپی ہوتی ہے۔ اپنے کاموں کے
جو ہم بیٹری تیار کریں تو سیلوں کو کس طرح جوڑیں؟ جیسے شکل 4 میں آپ ایک سیل ہولڈر بنا لیتے ہیں۔ یہ ہولڈر ایک لکڑی کے بلک دو لوہے کی پٹیوں ٹپس اور ربڑ بینڈز کی مدد سے بن جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ربر بینڈ دھاتی پٹیوں کو مضبوط سے تھام لے۔ دیکھ رہے ہیں بچوں، ادھر کا موٹا ادھر کا پتلا ہے، ادھر کا موٹا اور ادھر کا پتلا ہے، یاد کر لیجئے بچوں۔ بیٹری بنانے کے لیے دو سیلوں کو آپس میں جوڑنا، ایک سیل ہولڈر یہ بنائے پکڑنے کے لیے۔ ایک اور قسم کا سیل کیا ہے بچوں کہ دو یا دو سے زیادہ الیکٹرک سیلوں کی بیٹریاں بنانے کے لیے آپ ہولڈر بازار سے بھی خرید سکتے ہیں۔ ان ہولڈر میں سیلوں کو صحیح ترتیب سے رکھیے تاکہ ایک سیل کا مثبت ٹرمینل اگلے سیل کے منفی ٹرمینل سے جڑ سکے۔ شکل 5 میں دکھایا گیا ہے کہ سیل ہولڈر کے اوپر دونوں دھاتوں پٹیوں کو تار کے ایک ٹکڑے سے جوڑ دیجئے۔ اب آپ کی بیٹری استعمال کے لیے تیار ہے بچوں۔ بیٹری کے لیے علامت استعمال کی گئی وہ شکل میں دکھائی گئی۔ اس میں 3 سیلوں میں اسی لیے اس میں لمبے اور چھوٹے متوازی خطوط کے 3 جوڑے ہیں۔ اب ہم جدول 1 میں دکھائی گئے علامتوں کا استعمال کرکے برق سرکٹ کا ایک سرکٹ ڈائیگرام بنا لیں۔ سرگرمی 1 میں یہ ہے کہ جو برق سرکٹ شکل 7 میں دکھایا گیا ہے ویسا ہی ایک برقی سرکٹ بنائیے۔ آپ نے چھٹی کلاس میں برقی بلب جلانے کے لیے ایسا ہی سرکٹ تیار کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلب صرف اسی وقت روشن ہوتا ہے جب سوئچ آن حالت میں ہوتا ہے۔ اپنی کاپی میں اس برقی سرکٹ کو نقل کیجئے۔ اس کا سرکٹ کی ڈائیگرام کو برقی آلات کے علامتوں کا استعمال کرکے تیار کیجئے۔ آپ کا تیار کردہ ڈائیگرام ایسا ہی جیسا شکل 8 میں دکھایا گیا ہے۔ علامتوں کا استعمال سرکٹ ڈائیگرام بنانا بہت آسانی ہے، اسی لیے ہم عام طور پر برقی سرکٹ کے اظہار کے لیے سرکٹ ڈائیگرام کا استعمال کرتے ہیں۔ سرکٹ ڈائیگرام کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اور یہ ہے پہلی اور وہ جو حیرت میں ہے کہ کیا ٹرکوں اور ٹارچوں اور انورڈ وغیرہ میں بھی انہیں سیلوں سے بنی بیٹریاں استعمال کی جاتی ہیں، تب یہ ایک بیٹری کیوں کہلاتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کیا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ انورٹر بچوں، یہ انورٹر ہے، آپ سنیں گے انورٹر۔ سرکٹ بیٹری اور اس کا کٹ آؤٹ۔ شکل 9 میں ایک دوسرے سرکٹ کا ڈائیگرام دکھایا گیا ہے۔ کیا یہ شکل 8 میں دکھایا گیا سرکٹ ڈائیگرام جیسا ہے؟ یہ اگر مختلف ہے تو کس طرح؟ کیا اس برقی سرکٹ میں بلب جلے گا؟ پھر یاد کیجئے کہ بلب اسی وقت روشن ہوگا کہ جب سوئچ آن ہوگا، ان حالت میں ہوگا اور برقی سرکٹ بند ہوگا۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شکل 7 میں سرکٹ جل رہا ہے اور اس میں 8 میں دکھائے گئے برقی سرکٹ کا سرکٹ ڈائیگرام یہ نہیں جل رہا ہے، یہ بھی جل رہا ہے بچوں، یعنی یہ جڑا ہوا ہے یہاں پہ۔ یہ غور کیجئے کہ سوئچ کو سرکٹ میں کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جب سوئچ آن حالت میں ہوگا کہ تب بیٹری مثبت ٹرمینل سے منفی ٹرمینل تک سرکٹ کا مکمل ہو جائے گا اور اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ سرکٹ بند ہے۔ اب پورے سرکٹ میں برقی بہنے لگے گا۔ جب سوئچ آف حالت میں ہے سرکٹ نامکمل، اس کو کھلا سرکٹ کہا جائے گا۔ اس سرکٹ کے کسی بھی حصے میں برقی رون نہیں جائے گی۔ بلب کے اندر ایک باریک تار ہوتا ہے جسے فلامنٹ کہتے ہیں، باریک تار جسے فلامنٹ کہتے ہیں، اور جب اس میں برقی رو گزرتی ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے۔ جب فیوز ہو جاتا ہے تو فلامنٹ یعنی بلب کا تار ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے بلب کے اندر ایک جو چھوٹے چھوٹے تار دیکھتے ہیں بچوں، اسے فلامنٹ کہتے ہیں، اور یہ ہے وہ فلامنٹ۔ یاد کیجئے فلامنٹ فلامنٹ فلامنٹ۔ احتیاط میں لائن سے جڑے اور جلتے ہوئے بجلی کے بلب کو کبھی مت چھوئیے، یہ بہت گرم ہوتا ہے اور اس سے آپ کا ہاتھ بری طرح سے جل سکتا ہے۔ مین لائن یا جنریٹر یا انورٹر کی بجلی کی سپلائی سے دور رہیے، اس سے آپ کو بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اوپر جو سرگرمیاں بیان کی گئی ہیں ان میں صرف برقی سیلوں کا ہی استعمال
लीजिए। अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाए तो क्या सर्किट मुकम्मल होगा? क्या बल्ब उस वक्त तक भी जलेगा? नहीं बच्चों, थोड़े-थोड़े बस से आपने देखा होगा कि एक जलता हुआ बिजली का बल्ब गर्म हो जाता है। आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? बरक़ी रोक के हरारती असर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सरगर्मी 2, एक बरक़ी सेल, एक बल्ब, एक स्विच पर जोड़ने के लिए तार लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं सरगर्मी, और जिस तरह शक्ल 9 में दिखाया गया था, एक बरक़ी सर्किट बनाइए। इस सरगर्मी को सिर्फ एक सेल इस्तेमाल करके अंजाम दीजिए। स्विच को ऑफ हालत में रखिए। क्या बल्ब रोशन हुआ? बल्ब को छूइए। अब इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन हालत में कीजिए और 1-2 मिनट तक बल्ब को जलता रहने दीजिए। अब बल्ब को दोबारा छूइए। क्या आपको अब कुछ फर्क महसूस हुआ? दोबारा स्विच को ऑफ हालत में करके बल्ब को दोबारा फिर छोड़िए। गर्म है बच्चों। सरगर्मी 3 में हम जैसा कि शक्ल 10 में दिखाया गया, क्या ऐसा ही एक सर्किट बनाइए। तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबाई नाइक्रोम तार का टुकड़ा लेकर 2 किलो के दरमियान बांध लीजिए। नाइक्रोम का तार आपको किसी भी बिजली के सामान की मरम्मत करने वाले दुकान से मिल जाएगी, या फिर आप बिजली के हीटर के पुरानी कोयल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तार को छुइए। अब स्विच को ऑन हालत में करके करंट को सर्किट में छोड़ दीजिए। चंद लम्हों के बाद तार को छुइए, उसको देर तक मरम्मत पकड़िए। करंट के बहने को कर दीजिए बंद कर दीजिए बहने को बंद कर दीजिए। चंद मिनट बाद फिर तार को छुइए। बच्चों क्या वो होता है, जैसे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये नाइक्रोमीटर है, फिर उसमें कांटे ठोक दिए। नहीं, ये कागज है बच्चों। क्या कागज? ये लकड़ी। ये नाइक्रोमीटर है, नाइक्रोम क्या आप पढ़े थे? और जलाने के बाद ये गर्म हो जाता है। क्या बोले थे बच्चों? नाइक्रोम। एहतियात करना है क्या बच्चों? स्विच को ज्यादा देर तक ऑन हालत में मत रखिए, वरना सेल बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगा। सेल बूझू को बरक़ी में एलिमेंट नजर नहीं आ रहा है। पहले ने उसे बताया कि बिजली के सामान जैसे अमरशन, हीटर, हॉट प्लेट, इस्त्री, गीजर, बिजली की कितली, हेयर ड्रायर अंदर भी एलिमेंट होते हैं। क्या आपने उनमें से किसी सामान में एलिमेंट देखा है, यानी रोशनी दिखी है? तार में भी जब ये बर्क गुजरती है तो तार गर्म हो जाता है। ये बरक़ी रो का हरारती असर, हीटिंग इफेक्ट। क्या आपके ख्याल है कि मैं कोई ऐसा बिजली का सामान है जिसमें बर्क रो की हरारत असर को इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे सामान की एक फहरिस्त तैयार कीजिए जो गर्म हो जाते हैं ऑन करने पे। आपने सर्दी के मौसम में कमरा को गर्म रखने के लिए बिजली का हीटर इस्तेमाल करते हैं, या फिर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बरक़ी हीटर देखा होगा। उन सब के तार की एक कोयल होती है। तार की उस कोयल को एलिमेंट कहा जाता है। क्या बच्चों? एलिमेंट कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब उस किस्म के आलात को बिजली से जोड़कर स्विच ऑन किया जाता है तो उनके एलिमेंट गर्म हो जाते हैं। इलामेंट और हरारत देता है। इलामेंट है बिजली के प्रेस का इलामेंट। तार में पैदा हुई हरारत की मिकदार तार के मादे, उसकी लंबाई और मोटाई पर मुनहसर होता है। इस तरह मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए मुख्तलिफ मादों के तार, जिनकी लंबाई और चौड़ाई भी मुख्तलिफ होती है, इस्तेमाल किए जाते हैं। जो तार बरक़ी सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देख सकते हैं इलामेंट होते हैं बच्चों, या इलामेंट। ये नाइक्रोमीटर आमतौर पर गर्म नहीं होने के जो तार बरक़ी सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो आमतौर पर गर्म नहीं होते। इसके बरखिलाफ कुछ बिजली के सामान के एलिमेंट इतने गर्म हो जाते हैं कि वो आसानी से नजर आ जाते हैं। बिजली के बल्ब का एलिमेंट गर्म हो जाता है और उसका दर्जा हरारत इतना ऊंचा हो जाता है कि वह चमकना शुरू हो जाता है। बिजली के बल्ब का इस्तेमाल शुरू रोशनी के लिए बल्ब किया जाता है, लेकिन ये हरारत भी देता है। ये बात पसंदीदा नहीं है। इससे बिजली ज़ाया हो जाती है। बिजली के इस तरह ज़ाया होने से बचने के लिए बल्ब के बजाय फ्लोरिस्टन, क्या बच्चों? फ्लोरिसेंट फ्लोरिसेंट ट्यूब लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप भी इस बर्बादी को
कम करता है और उनको आम बल्बों के होल्डरों में देखा गया है। जैसे देख रहे हैं बच्चों, जो होल्डर है ये इलामेंट है। ये कौन सा? कॉम्पैक्ट फ्लोर इलामेंट ट्यूब लाइट्स। बहरहाल ट्यूब या CFL कॉम्पैक्ट फिलामेंट ट्यूब खरीदने से पहले ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, क्या ब्यूरो स्टैंड ऑफ इंडिया, ये ISI का निशान जरूर देख लीजिए। बहुत सच बात ये तो यह है कि बिजली का कोई भी सामान खरीदने से पहले ये निशान जरूर देखें। ISI के निशान से ये बात यकीन हो जाती है कि बिजली का सामान महफूज है और उसमें तवानाई की बर्बादी कम से कम होती है, एनर्जी कम से कम होती है। अगर तार में से ज्यादा करंट गुजरता है तो वो इतना गर्म हो जाता है कि या तो पिघल जाता है या टूट जाता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है तार पिघल जाए या टूट जाए? आइए देखते हैं कैसे होता है। तो सरगर्मी 4 है कि सरगर्मी 3 में जो सर्किट इस्तेमाल किया था उसी को फिर बनाइए। बहरहाल सेल की जगह 4 सेलों वाली बैटरी का इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा नाइक्रोम तार की जगह स्टील वूल की बारीक सतली बांध दीजिए। बर्तनों के को धोने के लिए स्टील ऊन का इस्तेमाल आम है और यह पंसारी की दुकानों पर आम तौर से दस्तयाब है। कमरे में अगर पड़े हो तो उनको बंद कर दीजिए। कुछ वक्त के लिए सर्किट में करंट छोड़िए। स्टील ऊन के सतली को ध्यान से देखिए। हर बात को कलमबंद करते रहिए। क्या स्टील ऊन की सतली पिघल गई या टूट गया? कुछ मखसूस मादों के तार में अगर ज्यादा बर्की रू गुजरती जाती है तो वह पिघल जाते हैं या टूट जाते हैं। उन तारों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। तमाम इमारतों में बिजली की सर्किट के अंदर फ्यूज लगाए जाते हैं। करंट जो सर्किट से हिफाजत हो जाए, गुजर सके, उसके भी एक हद होती है। अगर करंट से हद से ज्यादा हो जाए तो तार बहुत गर्म हो जाता है और उनसे आग लग जाती है। लेकिन अगर सर्किट में फ्यूज तार का सही इंतजाम तो फ्यूज तार पिघल जाए और सर्किट टूट जाए। इस तरह फ्यूज एक हिफाजती तदबीर है जो बर्क सर्किट को नुकसान से महफूज रखती है और जिससे आग लगने के इम्कानात खतरात भी खत्म हो जाते हैं। देख रहे हैं फ्यूज बच्चों, ये बर्क इमारतों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूज है। ये बच्चों आपके घरों में ऐसे ही होगा। मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ किस्म के फ्यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। शक्ल 14 में वह फ्यूज दिखाए गए हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। में जो फ्यूज दिखाए गए हैं वह आमतौर पर बिजली के सामान में लगते हैं। बिजली के सामान में लगने वाला फ्यूज, ये फ्यूज भी हो सकता है बच्चों, देख सकते हैं ये। तो आइए एहतियात एक पढ़ लेते हैं। कभी भी मेन सर्किट से जुड़े हुए इलेक्ट्रिक फ्यूज को खुद ठीक करने की कोशिश न करें। आप बिजली के सामान की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाइए और पुराने जले हुए फ्यूज की जगह नया फ्यूज लगवाइए। बिजली के सर्किटों में ज्यादा करंट आने का एक सबब तारों का बराह रास्त टचिंग है। अगर तार टूट फूट गया और उसकी वजह से तारों का इंसुलेशन खराब हो गया, जो अक्सर हो जाता है तो उससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। सर्किट में ज्यादा करंट आने का एक दूसरा सबब यह भी है कि एक ही शाफ्ट में बहुत से बिजली के सामान के कनेक्शन जोड़ दिए जाते हैं। ऐसा करना सर्किट में एक और लोडिंग का सबब बन जाता है। आपने अखबारात में अगर आग लगने के ऐसे वाकयात पढ़े होंगे जिनके वजह शॉर्ट सर्किट या और लोडिंग होती है। तो ये पढ़ सकते हैं बच्चों। आजकल फ्यूज की जगह MCB मिनीटर MCB सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये ऐसी स्विच है जो सर्किट में महफूज हद से ज़्यादा करंट बढ़ जाने पर खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। आप इनको ऑन कर दीजिए, सर्किट फिर मुकम्मल हो जाएगा। MCB खरीदते वक्त भी ISI का निशान ज़रूर देखिए, ISI। तो बरकी रूह का मगनातीसी असर,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ये भी हम पढ़ेंगे बच्चों। इस्तेमाल शुदा माचिस में से कार्डबोर्ड की ट्रे लीजिए, है माचिस में से कार्डबोर्ड की ट्रे लीजिए और उसके चारों तरफ बिजली का लपट दीजिए। उसके अंदर एक छोटी कुतुबनुमा की सुई, कंपास, नीडल्स रख दीजिए। तार के दोनों सरों को सोचे के जरिए स्विच के जरिए बर्क सेल से जोड़ दीजिए, जिस तरह शक्ल 17 में दिखाया जाएगा। गौर कुतुबनुमा की सुई किस तरह इशारा कर रही है। एक क्षण मगनातीस को कुतुबनुमा की सुई के पास लाइए, मुशाहिदा कीजिए क्या होता है। कुतुबनुमा की सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन हालत में कर दीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं? क्या कुतुबनुमा की सुई कुछ मुनहरिफ हो रही है? स्विच का फिर ऑफ हालत में कर दीजिए। क्या कुतुबनुमा की सुई फिर इतनी जगह वापस आई? इस तजुर्बे को बार बार दोहराइए। यह तजुर्बा क्या इशारा करता है? हम जानते हैं कि कुतुबनुमा की सुई एक छोटा सा मगनातीस है जो कि शुमाली जुनूब सिमत की तरफ इशारा करता रहता है। जब हम एक मगनातीस उसके करीब लाते हैं तो सुई अपने सिमत से हटने लगता है। हमने यह भी देखा है कि कुतुबनुमा की सुई उस वक्त भी मुनहरिफ हो जाती है जबकि कहीं करीब में बरकी रूह गुजर रही है। क्या इन दिनों में आपका एक दूसरे से मजबूत कर सकते हैं? जब तार से बरकी रूह गुजरती है तो क्या तार मगनातीस की तरह काम करती है? बच्चों ये सलाई क्या है, इसमें तार लेना है और फिर इधर से जोड़ देना है, इधर से जोड़ देना, फिर ऊपर से क्या करना है, मगनातीस दिखाना है। कुतुबनुमा की सुई पर बरकी रूह का असर। एक साइंसदान भी जिसका नाम हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड था, इस बात से बड़ा ताज्जुब में था। वह शख्स था जिसने यह मुशाहिदा किया कि जब जब तार से बरक़ी रूह गुजरती है तो कुतुबनुमा की सुई मुनहरिफ हो जाती है। मुनहरिफ हो जाता है। हंस क्रिश्चियन और स्टेट 1977 से 1981 एंड में मर गया। 1977 से 19 साले लोग कितना जिंदा होते हैं। इस तरह जब तार से बरक़ी रूह गुजरती है तो वह मगनातीस की तरह अमल करता है। बरक़ी रूह का यह मगनातीस असर हकीकत में बरक़ी रूह को मगनातीस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको क्या यह बात हैरत अंगेज हो रही है? आइए इसे बरक़ी मगनातीस इलेक्ट्रोमैग्नेट गर्मी एक 75 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटर तार का टुकड़ा जिसमें प्लास्टिक या कपड़ा बंधा हुआ हो, चढ़ा हुआ हो, इंसुलेटर और एक लोहे की कील 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी लीजिए। तार को कील के चारों तरफ मजबूती से इस तरह लपेट दीजिए कि एक कोयल की सी शक्ल बन जाए। तार की दोनों सिरों को स्विच के जरिए सेल के टर्मिनल से जोड़ दीजिए, जैसे आप देख रहे हैं बच्चों। कील में चारों तरफ से घुमा दिए। अब एक बरक़ी मगनातीस, ये बरक़ी मगनातीस क्या है बच्चों? कि एक ही वक्त में चंद सेकंड से ज्यादा स्विच के ऑन मत रखिए। बरक़ी मगनातीस अगर जुड़ा हुआ रह जाता है तो सेल को बहुत जल्दी कमजोर कर देता है। कील के सिरे पर या उसके आसपास कुछ पिन्स रख दीजिए। अब स्विच को ऑन कर दीजिए। वक्त वाक़ हुआ, क्या पेन्स की कील से लिपट गई? अब स्विच ऑफ कर दीजिए। क्या पेन्स अब भी कील की सर से लिपटी हुई है? देखना है बच्चों, कील जो नीचे आप लगाए थे उसको देखना है चिपक गई। इस गर्मी में जब बरक़ी रूह कॉइल में से गुजरती है तो वह मगनातीस की तरह अमल करता है और जब बरक़ी रूह का स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो कोयल आमतौर पर अपने मगनातीस खो देता है। ऐसे कोयल को बरक़ी मगनातीस कहते हैं। बरक़ी मगनातीस को बहुत ताकतवर बनाया जा सकता है और इस तरह ये ज्यादा बोझ हैवी लोड्स भी उठा सकते हैं। आपको क्रेल की याद आई होगी कि जिसके बारे में आपने छठी क्लास के 13वीं बाब में पढ़ा है। क्रेल के सिरे पर बरक़ी मगनातीस लगा होता है।
कबाड़ से मगनातीसी अशिया को जुदा करने के लिए भी बरक़ी मगनातीस का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर इस मगनातीस शय को जो इत्तेफाक से आँख में गिर जाते हैं, छोटे मगनातीस से ही निकालते हैं। बहुत से खिलौने भी बरक़ी मगनातीस इस्तेमाल होते हैं। बरक़ी घंटी, बरक़ी इलेक्ट्रिक बेल क्या है? बिजली की घंटी या बरक़ी घंटी से हम सब वाक़िफ़ हैं। इसके अंदर एक बरक़ी मगनातीस होता है। आइए देखिए कि ये बरक़ी घंटी किस तरह काम करती है। शक्ल 20 में आप देख रहे हैं इधर एक बरक़ी घंटी का सर्किट दिखाया गया है। उसमें तार का एक कॉइल एक लोहे की टुकड़ी पर लिपटा हुआ होता है। कॉइल एक बरक़ी मगनातीस का काम करता है। एक लोहे की पट्टी जिसके एक सिरे पर हथौड़ी हमर होती है, बरक़ी मगनातीस के करीब रखी जाती है। लोहे की पट्टी के पास एक तमास पंच कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है। जब लोहे की पट्टी पंच के तमास में आती है तो कोयल में से बरक़ी रूह गुजरती है जो बरक़ी मगनातीस बन जाती है। उस वक्त ये लोहे की पट्टी को खींच लेता है। इस अमल में पट्टी के सिरे पर हथौड़ा हमर चल जाती है और आवाज़ पैदा करती है। बहरहाल जो बरक़ी मगनातीस लोहे की पट्टी को खींच लेता है तो सर्किट टूट जाता है और कॉइल में से गुजरने वाला करंट लग जाता है। क्या कॉइल अब भी मगनातीस है? ओ बच्चों, क्या देख रहे हैं? ये चिपका हुआ रहता है बच्चों, ठीक। और जब स्विच ऑन करते हैं तो ये नीचे आता है और फिर इस पर मारता है जोर से, फिर घंटी बज जाती है। अब कोयल बरक़ी मगनातीस नहीं है। अब ये लोहे की पट्टी को अपनी तरफ नहीं खींचता। लोहे की पट्टी अब फिर अपनी असली हालत पर आ जाती है और फिर तमास पंच को छोटी है। इससे सर्किट मुकम्मल हो जाती है। करंट कोयल में से दोबारा गुजर जाती है और हथौड़ी हमर फिर घंटी बजाती है। यह अमल बहुत तेज़ी से तवातुर के साथ बार-बार होता है। जब भी सर्किट मुकम्मल होता है तो हथौड़ी चल जाती है और घंटी बजती है और इस तरह घंटी बजती रहती है। बच्चों, जब स्विच ऑन करते हैं तो ये इस पे मारता है, फिर पीछे हट जाता है, फिर हम ऑन करते हैं तो फिर ऐसे बजती रहती है। कलीदी अल्फाज, बैटरी जानते हैं, बरक़ी आलात, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, सर्किट, बरक़ी घंटी, इलेक्ट्रिक बेल्स, बरक़ी मगनातीस, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्यूज जानते हैं, हरारती असर, हीटिंग इफेक्ट, मगनातीस असर, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। आपने क्या सीखा? ये रोक के आप खुद पढ़िए बच्चों, और मस्क करना है ज़रूरी। मस्क नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं आपके पढ़ने का। देख सकते हैं ये भी खाली जगहों को पुर करना है और इस तरह से आपका सबक नंबर 15 खत्म हुआ। तो ये आमोजिश सरगर्मियाँ और प्रोजेक्ट जरूर करना है बच्चों। पहले और बुझू ने कुछ दिन पहले एक जादू खेल देखा था। जादूगर ने लोहे का एक डब्बा एक स्टैंड पर रखा। उसने बुझू को बुलाया और कहा कि इस डब्बे को उठाओ। बुझू ने बहुत आसानी से डब्बा उठा लिया। अब जादूगर ने अपने छड़ी डब्बे के चारों तरफ घुमाया और मुंह में कुछ बड़बड़ाता भी रहा। उसने बुझू से फिर कहा कि इस डब्बे को उठाओ। इस मर्तबा बुझू बेकर हिला भी न सका डब्बे को। जादूगर ने फिर कुछ पढ़ा और बुझू ने डब्बा उठा लिया। सब तमाशा देखने वाले खुद पहले और बुझू इस तमाशे को देखकर बहुत मुतासिर हुए और समझे कि वाकई जादूगर के पास कुछ माफाकुल फितरत ताकत है। लेकिन इस बाब को पढ़ने के बाद पहले सोच रही है कि क्या वाकई वो कोई जादूगर था। इसमें कोई साइंसी तदबीर शामिल थी। अंदाजा लगाया कि उसमें कौन सी साइंस बात हो सकती है। एक बरक़ी मगनातीस का इस्तेमाल करके आप
ریلوے سگنل کا ماڈل بنا سکتے ہیں، شکل 26 میں دکھایا گیا ہے۔ بچوں یہ کوئل ہے آپ کا، لوہے کی کیل، یہ دھاگا ہے، کاربورڈ بورڈ سگنل۔ بجلی والے کی دکان پر جائیے اور اس سے کہیے کہ وہ آپ کو مختلف قسم کے فیوز اور ایم سی بی دکھائے، اور یہ بھی بتائیے کہ یہ کس طرح کا کام کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے منتظر رہیں۔ ویب سائٹ دیکھیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے آپ کو کہ بجلی کے بلب کے ایجاد کا سہرا تو تھامس ایلوا ایڈیسن ہی کی سر ہے، البتہ اس پر کام اس سے پہلے بھی لوگ کیا تھا۔ ایڈیسن کی شخصیت بڑی ممتاز حیثیت کی مالک تھی۔ بجلی کے بلب، گراموفون اور موشن پکچر کیمرہ سمیت تقریباً 1300 ایجادات کا سہرا ان کے سر ہے۔ کاربن ٹرانسمیٹر بھی انہی کی ایجاد ہے جس نے ٹیلی فون کی ایجاد کا راستہ ہموار کیا۔ دیکھ رہے ہیں 1847 میں پیدا ہوا، 1931 میں تھامس ایلوا ایڈیسن مر گیا۔ اور ایسے بچوں ہمارا سبق نمبر کتنا؟ سبق نمبر 14 ہمارا مکمل ہوا، برقی اور ان کے اثرات۔ اور پھر ملیں گے اگلے چیپٹر میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، سبحان اللہ بحمدہ، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔